আদালতৰ পৰা ৰেহাই পায়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীক হুংকাৰ প্ৰদান অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। যদি সাহস আছে তেন্তে দিল্লীত পুনৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰক। বিজেপিয়ে যদি 10খন আসনো পায় ৰাজনীতি এৰি দিব কেজৰিৱালে। কেজৰিৱালৰ সৈতে যুঁজিবলৈ মোদীৰ হাতত এতিয়া কেৱল এটাই ব্যৱস্থা আছে, কেজৰিৱালক হত্যা কৰিব লাগিব। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को। मोदी जी हिम्मत है, दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो। 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तुम्हारी 10 से ज्यादा सीट आ जाए मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब तो एक ही तरीका बचा है मोदी जी केजरीवाल से निपटने का। केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। उसके अलावा अब केजरीवाल आपसे संभलने वाला नहीं है। अब आपके बस का नहीं है केजरीवाल, आपने सब कुछ करके देख लिया, अब केजरीवाल का कत्ल ही करवाना पड़ेगा। দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এক দীৰ্ঘদিনীয়া আইনী যুঁজৰ পাছত এক বৃহৎ জয়লাভ কৰিছে। বহুল চৰ্চিত দিল্লী আবকাৰী নীতি গোচৰত শুকুৰবাৰে দিল্লীৰ ৰাউছ এভিনিউ আদালতে কেজৰিৱালৰ লগতে মনীষ চিচোদিয়া আৰু BRS নেত্ৰী কে কবিতাৰ সৈতে মুঠ 23জন অভিযুক্তক সন্মানেৰে মুক্তি দিছে। আদালতৰ এই ৰায়দানৰ কেইঘণ্টামানৰ পিছতেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু বিজেপিক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰে দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক পোনপটীয়াকৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাই কয় যে যদি সাহস আছে তেন্তে দিল্লীত পুনৰ নিৰ্বাচন পাতি দেখুৱাওক। বিজেপিয়ে যদি 10খনতকৈ বেছি আসন পায় তেন্তে তেওঁ ৰাজনীতি চিৰদিনৰ বাবে এৰি দিব বুলি ঘোষণা কৰে। প্ৰায় 600 পৃষ্ঠাৰ ৰায়দানত আদালতে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা CBIৰ তথ্যসমূহক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে। বিচাৰককেইগৰাকীয়ে জনাইছে যে কোনো ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ বা অপৰাধমূলক উদ্দেশ্যৰ যি অভিযোগ CBIয়ে আনিছিল তাৰ সমৰ্থনত কোনো বিশ্বাসযোগ্য তথ্য বা প্ৰমাণ তেওঁলোকে দাখিল কৰিব পৰা নাই। আনকি গোচৰটো বিচাৰৰ পৰ্যায়লৈ নিবলৈ প্ৰয়োজনীয় ন্যূনতম উপাদান পৰ্যন্ত আদালতত পোৱা নগ'ল। কেজৰিৱালে এই ৰায়দানক সত্যৰ জয় বুলি অভিহিত কৰিছে। তেওঁ কয় যে আদালতে স্পষ্ট কৰি দিলে যে এইটো এটা সম্পূৰ্ণৰূপে ভিত্তিহীন আৰু সাজি উলিওৱা মিছা গোচৰ আছিল। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को। मोदी जी हिम्मत है, दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो। 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तुम्हारी 10 से ज्यादा सीट आ जाए मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है तुम लोगों से। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, अगर आपने सत्ता हासिल करनी है कुछ पॉजिटिव काम करके सत्ता हासिल करो। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आज देश का युवा दुखी है, देश का व्यापारी दुखी है, देश का उद्योगपति दुखी है। आज अमेरिका हमें आंखें दिखा रहा है। मोदी जी की हिम्मत नहीं है जो ट्रंप के खिलाफ एक शब्द बोल दे। ट्रंप के खिलाफ रोज ट्रंप गालियां देता है मोदी जी को, रोज ट्रंप गालियां देता है भारत को, रोज ट्रंप गालियां देता है हमारे देश को। मोदी जी के हमारा प्रधानमंत्री भीगी बिल्ली बना हुआ है। अरे देश संभालिए ना, आपको हमने देश चलाने को दिया था और आप केजरीवाल में उलझ गए, आप आम आदमी पार्टी में उलझ गए। पॉजिटिव काम करके सत्ता हासिल कीजिए, ये नेगेटिव काम करना बंद कीजिए। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। আদালতৰ পৰা ৰেহাই পোৱাৰ পিছত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কেজৰিৱালে অভিযোগ কৰে যে আম আদমী পাৰ্টিক ধ্বংস কৰিবলৈ আৰু তেওঁক ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰাবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এক গভীৰ ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ ৰচনা কৰিছিল। তেওঁৰ মতে স্বাধীন ভাৰতৰ ইতিহাসত এইটোৱেই আছিল আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ। কেৱল ক্ষমতাৰ লোভত যোৱা এটা বছৰত দিল্লীৰ 3 কোটি মানুহৰ জীৱন ছাৰখাৰ কৰি দিয়া হৈছে বুলিও তেওঁ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে। যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰাৰ পিছৰে পৰা দিল্লীৰ পৰিস্থিতি অধিক শোচনীয় হৈ পৰা বুলিও তেওঁ দাবী কৰিছে। मोदी जी और अमित शाह जी के षड्यंत्र का खामियाजा जो दिल्ली भुगत रही है, दिल्ली के 3 करोड़ लोग भुगत रहे हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? आज दिल्ली में कहीं चले जाओ, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, अस्पतालों में दवाइयां मिलनी बंद हो गई हैं, मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं, स्कूलों का बुरा हाल हो रहा है। पूरे दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज्यादा कभी दिल्ली की जनता ने नहीं देखा था। यमुना का बहुत बुरा हाल हो गया है। एक चीज बता जो तो दिल्ली में इन्होंने ठीक करी हो। पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। सबसे बड़ा खामियाजा मोदी जी और अमित शाह जी की सत्ता की हवस, उसका सबसे बड़ा खामियाजा दिल्ली के 3 करोड़ लोगों ने भुगता है। दिल्ली के लोगों से जाके पूछो। आपने ईडी छोड़ दी, आपने CBI छोड़ दी, आपने पुलिस छोड़ दी, आपने इनकम टैक्स छोड़ दिया हमारे पीछे, आपने जेल भेज दिया हमारे 5 सबसे बड़े नेताओं को। आम आदमी पर एक समय ऐसा था जब आम आदमी पार्टी के सबसे टॉप के 5 नेता जेल में थे एक साथ। उसके बाद भी केजरीवाल का कुछ नहीं बिगाड़ सके।
अब तो एक ही तरीका बचा है मोदी जी केजरीवाल से निपटने का। केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। उसके अलावा अब केजरीवाल आपसे संभलने वाला नहीं है। अब आपके बस का नहीं है केजरीवाल, आपने सब कुछ करके देख लिया, अब केजरीवाल का कत्ल ही करवाना पड़ेगा। और एक तरीका है, मैं पहले भी बोल चुका, लेकिन वो मोदी जी के बस का नहीं है। मैंने 500 स्कूल बनवाए दिल्ली में, आप 5000 स्कूल बनाओ। मैंने दिल्ली की सड़कें अच्छी करी, आप पूरे देश की सड़कें ठीक कर दो, देखो केजरीवाल को कोई पूछेगा ही नहीं। केजरीवाल ने 200 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप 20,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, आप तो देश के प्रधानमंत्री हो, अरे अच्छे काम करो ना। वो नहीं होता मोदी जी से, वो मोदी जी से नहीं होता। मैं उनको कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, केवल सत्ता की जो प्रधानमंत्री मोदी जी की और अमित शाह जी की सत्ता की हवस है, ये उसका नतीजा है जो ये षड्यंत्र रचा गया। উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে 2025 চনৰ দিল্লী বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সুৰা কেলেংকাৰীক ইছ্যু কৰি শাসনলৈ আহিল বিজেপি। কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ সুৰা নীতিত মূল অভিযুক্ত কৰা হ'ল আম আদমি পাৰ্টিকেই, যিটো ভাৰতীয় ৰাজনীতিত নজৰবিহীন ঘটনা। এই অভিযোগত জেললৈ গৈছিল কেজৰিৱাল, এৰিব লগা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ। কিন্তু তাৰ পাছত চিবিআইৰ সেই মোনাৰ পৰা কি তথ্য বাহিৰ হ'ল? বিগ জিৰ'। অভিযোগৰ প্ৰাথমিক প্ৰমাণো দাখিল কৰাত ব্যৰ্থ হ'ল চিবিআই। কেৱল ধাৰণাৰ ভিত্তিতেই সজোৱা হৈছিল নেকি গোচৰ? ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ত সাপমুক্ত হোৱা কেজৰিৱালে সত্য এদিন নহয় এদিন পোহৰলৈ আহে বুলি কোৱা মন্তব্য ঠিকেই, কিন্তু সত্য পোহৰলৈ আহে মানে অসত্যই তেওঁৰ পৰা সকলো কাঢ়ি নিলে নেকি বাৰু? সেয়া এতিয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।